More news coming in. Pakistan seems to be celebrating this massacre with a cake. A cake, shockingly, was brought inside the Pakistan High Commission in New Delhi. The man carrying this cake evaded questions when asked what was the celebration about. The cake taken inside the commission. चलो बताओ कई बड़े निर्णय लिए गए हैं पाक के जो राजनयिक है छोड़ने का आदेश आपको अपने हाथों में केक लेकर नजर आएंगे बोल नहीं रहे केक लेकर जा रहे हैं कौन सी खुशी है आज कुछ है क्या कोई बात नहीं आपके यहाँ कोई फंक्शन भी हो सकता है बर्थडे आप बता दी आप अपना डेजिग्नेशन बताइए और ये सेलिब्रेशन किस लिए है ये तो बता ही सकते हैं किस वजह से जा रहे हैं क्या वजह है वो केक लेकर जा रहे हैं कल समन किया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन से चलो बताओ कई बड़े निर्णय लिए गए हैं पाक के जो राजनयिक है छोड़ने का आदेश आपको अपने हाथों में केक लेकर नजर आएंगे बोल नहीं रहे केक लेकर जा रहे हैं कौन सी खुशी है आज कुछ है क्या कोई बात नहीं आपके यहाँ कोई फंक्शन भी हो सकता है बर्थडे आप बता दी आप अपना डेजिग्नेशन बताइए और ये सेलिब्रेशन किस लिए है ये तो बता ही सकते हैं किस वजह से जा रहे हैं क्या वजह है वो केक लेकर जा रहे हैं कल समन किया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन से चलो बताओ कई बड़े निर्णय लिए गए हैं पाक के I'm going to go straight across to Piyush for more details on that. Piyush, in fact, the man carrying the cake not answering the questions of reporters who are asking him, I mean, what are you celebrating? Really, this is an optic that Pakistan could have really done away with, isn't it? It looks deliberate to me. Pakistan High Commission ordering in a cake. Tell us more. What are you picking up? एमसीडी के हमारे नेता राजा इकबाल सिंह जी हमारे विधायक गजेंद्र यादव जी से Well, absolutely. At one side, we have lost many of our civilians. On the other side, Pakistan seems to be celebrating. We also saw those visuals as where a man was seen carrying a cake in his hand inside the Pakistan High Commission. Also, it's important to highlight that at one side, Pakistan is celebrating. On the other side, only a few meters away from Pakistan High Commission, there are angry citizens of India who are protesting. Let me straight away try to show you visuals from right outside the Pakistan High Commission, where people have gathered and they are holding placard in their hand which reads Pakistan Murdabad, and this protest is being carried out by anti-terror action of force. So you can see as to how the angry citizens have come here. They are holding placards in their hand, and this is not a political protest, but a protest which is being carried out by few Indian citizens under the forum of anti-terror action forum. So we are now seeing how the people want to protest against the Pakistan, and they are also all set to move towards the Pakistan High Commission holding these placards in their hands. I would also like to show you as to how there's a truck also which has been placed here, which reads that the people have come here to protest against the terror attack which took place in Pahalgam. My video journalist is focusing on this huge banner which has also been pasted here, which reads Pahalgam में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा की गई निशंस हत्या के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन, and this translates into English where it says that this protest is against the horrific act, the brutal killing of Indian citizens, and that is what the intent of the people also here, and they are holding, you can see the pictures also, they are holding tricolor in their hand, and they are now marching towards the main entry gate of Pakistan High Commission. Though Delhi police has increased the security of this entire area, the barricades have been put up here in large numbers. Paramilitary forces have also been deployed here. People are chanting slogans against Pakistan. You can see as to how the people continue to chant slogans against Pakistan, and this shows the kind of anger which is there among the people, and that is why a large number of people have gathered here under the forum of anti-terror action force. At one side, Pakistan is celebrating the horrific killing, the brutal killing of Indian citizens. On the other side, a few Indian citizens have gathered barely a few meters away from the main entry gate of Pakistan High Commission. Absolutely. Protests, and rightfully so, Piyush,
of people who are in fact shouting slogans against Pakistan. This Pakistan Murdabad slogans have been heard in the funerals of those people, the tourists who were killed in this horrific terror attack in Pahalgam. If you could just get a word from the people around you also to give us an idea about what kind of action do they expect the government to take now, given that India has already started to retaliate, Piyush? Well, absolutely. I will try to get in a word from these people who are protesting here. We'll try to understand from them about their sentiments, and I would like to also understand as to what more are they asking for. Ma'am, आपके हाथ में मैं एक प्लेकार्ड देख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और ये एंटी टेरर एक्शन फोरम की तरफ से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि कल सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करना, जो बॉर्डर एरिया उसको बंद करना। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? पाकिस्तान को होश में आना पड़ेगा, और अगर वो होश में नहीं आएगा तो उसे नक्शे से जाना पड़ेगा। और सरकार ने तो जो किया है वो किया है, मर्यादा में रह के वो जो करते हैं वो करते हैं, परंतु देश की जनता जाग गई है। पूरे देश में हर एक हिंदुस्तानी के मन में आज रोष है। हम नाराज हैं, हम रोष में हैं कि आप कैसे निर्दोषों को उनका धर्म पूछ के उन्हें गोली मार रहे हैं। हम हिंदू पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हमने कभी भी जाकर उनके घर में किसी की जाति पूछ के उन्हें अत्याचार नहीं किए हैं, और हम अपने देश में भी जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनके पॉपुलेशन तो पिछले कई सालों में चौगुना हो चुके हैं, जबकि जो देश हमसे टूट के बने हैं, हमारे अंग जो टूट के बने हैं, वहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन आज 0.0 में है। सोचने की बात है कि हिंदुओं को अगर इस प्रकार उकसाया जाएगा तो इनका सर्वनाश, इन सब लोगों का सर्वनाश सुनिश्चित है। दूसरी बात, जो कुछ जयचंद देश की धरती पर हैं और जो पाकिस्तान के मंसूबों को फलफुलित कर रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आपको लगता है कि और कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है भारत सरकार की तरफ से? बिल्कुल होने चाहिए, और हमें इस बात का पूरा विश्वास है, मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की सरकार पे हमें पूरा विश्वास है कि जो भी कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। लेकिन मैम, एक तरफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ में मैं ये प्लेकार्ड देख पा रहा हूँ, वहीं पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर केक लेके जाया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? जो केक लेके जा रहा है उसे जाने दीजिए। हम तो देश की साधारण जनता है, हम जमीन पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे, और जिस दिन जनता जमीन पे होती है तो केक का क्रीम भी पिघल जाता है। जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी लड़की के 1 महीना हुआ है लड़की की शादी किए हुए, उन्होंने उसको पकड़ करके उसकी जाति पूछ करके उसको मारा है। क्या ये अच्छा है? ये अच्छा है? बताओ, किसी की लड़की का सुहाग चला गया 1 महीना, अब उसकी जिंदगी क्या हो गया? मैं तो कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, एक बार आपने घर में घुस करके मारा था, अब घुस करके उन लोगों को पकड़ कर लाइए जो हमारे हिंदुस्तान के साथ ऐसा कर रहा है। एक लड़की का सुहाग चला गया है, एक लड़की की चूड़ी चली गई है, एक लड़की की मांग चली उजड़ गई है, अब उस लड़की का क्या हाल होगा? आप बताइए क्या होगा? उन लोगों को शर्म नहीं आती है? एक बात, और दूसरे बात मैं आपको जरूर कहना चाहती हूँ, पहले हम किसी को छोड़ते नहीं है, अगर कोई हमें छेड़ता है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। किस तरह का गुस्सा है आप लोगों के अंदर? सर, गुस्सा बहुत है, गुस्सा इतना है, माँ का लाल चला गया है, महिला का उसका हस्बैंड चला गया। आप बताइए कितनी गलत बात है, इनको मिल क्या रहा है? आज खेलता खुलता उनका जीवन चला गया है। एक लड़की का जीवन वो अपने हस्बैंड के साथ जीती है, अपने हस्बैंड के साथ वो मरती है। 1 महीना ही हुआ उसकी शादी किए हुए, क्या खुश लग रहे हैं वो? उन्होंने उसको मार दिया है, बताइए, मार दिया है उसको। जिस तरीके से बिलबिलाई है वहाँ पर अपने पति को सर गोदी में रख के, उसी तरीके से हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की महिलाएं भी इसी तरीके से बिलबिलानी चाहिए। वो तो यहाँ बैठ के केक खा रहे हैं। कौन बैठ के केक खा रहे हैं? हाई कमीशन में केक गया, वहाँ केक